Hello students. First of all, welcome to all of you in the third session of the chapter 2 linear correlation. Students, in our last session we understand that how we can find the nature of correlation between the two variable with the help of scatter diagram. But in these sessions we are going to understand one more method which is just not give us the nature between the two variables but also shows strength of correlation between the two variable. Okay, so in these sessions we are going to understand one new method which is known as the Karl Pearson product moment method. Students, we already know that numerical measures of correlation which shows strength of correlation between two variables is known as a correlation coefficient, and that's what which we are going to understand in this method, and we will also going to find the value of correlation coefficient. This method is suggested by statistician, well-known statistician Mr. Karl Pearson. That is the reason why it is known as Pearson's correlation coefficient or product moment coefficient, and it is denoted by R. Okay, so in short, correlation coefficient is denoted by R. Suppose there are n pairs of observations of a sample on two variables x and y. If we have x1 y1 x2 y2 and till xn yn, then the coefficient of correlation between variables x and y is denoted by r in bracket x and y or simply by r. Okay, so this is the two method in which we can represent the correlation coefficient. Okay, assumptions of Karl Pearson correlation coefficient. So going further with the formula, I think it is better to first understand its basic assumptions on which this Karl Pearson product moment method is based. The first assumption is that there is a linear relationship between two variables. That already we understand what is linear relations. Okay, and the second one is there is a cause and effect relationship between two variables. Students, this also we understand in our first sessions of this chapter. Also having we having also some examples on this. So it is very important to have cause and effect relationship between two variables, because if there is no cause and effect relationship, it means there is no correlation between them. So it is impossible to find correlation for such variable which are not follow cause and effect relationship. क्लियर, मतलब कि जिसके दो वेरिएबल, ऐसे कोई भी दो वेरिएबल जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, उनका ही कोरिलेशन फाइंड करना पॉसिबल है. ठीक है, फाइंड कर सकते हैं पर उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, है ना. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू assumptions. एंड नाउ we are going to understand one of the most important things of this chapter, and that is the formulas. This chapter is full of formulas. तो उसको याद कैसे रखेंगे? Yes, it is final. इसको याद ही रखना पड़ेगा. There is not a shortcut like in account we have. If you understand the things, then you can solve any of the sums. It is not like that. Understanding के साथ में वो याद रखना भी ज़रूरी है. अगर आपने पूरे साल मेहनत की है बट एग्ज़ाम के टाइम के अंदर फॉर्मूला के अंदर कन्फ्यूजन हो गया और आपने गलत फॉर्मूला लिख के आए, तो वहाँ पे आपके पूरे साल की मेहनत का कोई मतलब नहीं निकल सकता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले दिन से ही फॉर्मूलाज के ऊपर ज़्यादा फोकस करो. स्टैटिस्टिक इज़ ऑलमोस्ट डिपेंड ऑन द फॉर्मूलाज, दैट शुड वी हैव टू एक्सेप्ट. ओके, सो फॉर्मूलाज सिर्फ हम लोग देखने के लिए नहीं, उसको जिस हिसाब से यहाँ पे रिविजन किया हुआ है मैंने, I think it is not given in textbook or not in even digest or any other publication. So what I suggest to you that please write this in your notebook, just like I mentioned in my session or PPT. Okay, so what is the base formula of correlation coefficient? That is R is equal to covariance of xy upon standard deviation of Sx into standard deviation of Sy. This is the formula. I just write in a word.
that covariance of xy upon standard deviation of x, standard deviation of y. Standard deviation of x is denoted like this much, that sx, and standard deviation of y is written as sy. Okay, so this is the main formula. But to find covariance of xy and standard deviation of x and standard deviation of y, we have a two different formula for each. Let's starting with the covariance of xy. So for covariance of xy, we have a two different method, number 1 and number 2. The number 1 is sigma x minus x bar, sigma y minus y bar upon n. स्टूडेंट्स, मुझे सिर्फ बोलना है, आपको ये सब कुछ लर्न करना है. क्यों? क्योंकि सिर्फ आर के 5 फॉर्मूलाज है. ठीक है, तो 5 फॉर्मूला में से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो याद भी रखना है और उसको लर्न भी करना पड़ेगा पूरा फॉर्मूला. ठीक है, सो दिस इज द 2 फॉर्मूला फॉर कोवेरियंस. द फर्स्ट वन इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार अपॉन एन. द सेकंड वन इज सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन. So this is the 2 formula for covariance. Now we are going to understand 2 different formulas for standard deviation of x and standard deviation of y. And there are also 2 formulas are there for standard deviation of x. The first formula is under root sigma x minus x bar square upon n. And the second formula for standard deviation of x is equal to under root sigma x square upon n minus x bar square. Like for x we have also y, so we can the same formula, but what we have to do, just put y instead of x and you get the formula of y. Okay, so if you want to find standard deviation of y, then similar as x, under root sigma y minus y bar square upon n, or the other formula is under root sigma y square upon n minus y bar square. So these are the 2 formulas for standard deviation. Okay, so we have two formula for each. 2 formula for covariance of xy, 2 formula for standard deviation of x, and 2 formulas for standard deviation of y. By using this, what we have to do, first we have to find the value of r. And for r we have a total 5 formulas. Okay, the first, second and third. Let's starting with the first one. Here is the first formula, that is r is equal to sigma x minus x bar into sigma y minus y bar upon under root sigma x minus x bar square into sigma y minus y bar square. अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला बना कैसे है ना, वही याद रखना है. मैंने ये पहले ये पूरी मेहनत इसके लिए करवाई ताकि ये फॉर्मूला आप लोगों को दिमाग के अंदर पूरी बैठ जाए. मेन फॉर्मूला क्या है हमारा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई. मैं एक बार समझा दूंगा और आपको आ जाएगा, इतना इजी भी नहीं है. ठीक है, समझ में आ जाएगा, बट एट द एंड मेहनत करके बार बार रिपीट करके 5 बार 10 बार 20 बार लिख के भी ये फॉर्मूला रटने पड़ेंगे. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. ओके, सो ऊपर जो हमको लिखना था क्या था, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई. तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई के लिए मैंने पहला फॉर्मूला यूज़ किया है. देखो यहाँ पे फॉर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ये वाला फॉर्मूला. ऊपर क्या दिया है आपको यहाँ पे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, एंड नीचे क्या आता है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड वाई. तो उन दोनों के जो पहले फॉर्मूला थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर. अभी आप लोग सोचो कि दोनों के अंदर का एन कहाँ पे गया. एन जो है ना वो आपस में कट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको लिखना नहीं होता है. ठीक है, एन जो है वो क्या हो जाता है, आपस में कट हो जाता है. जब आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हो तब वो आपस में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा. क्लियर. सो यहाँ पे इस हिसाब से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस पहले का फॉर्मूला, जैसे कि कोवेरिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला, देन स्टैंडर्ड डेविएशन का फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ एक्स का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फर्स्ट फॉर्मूला. इस हिसाब से आपका फर्स्ट फॉर्मूला जो है पूरा क्लियर हो जाता है. सेकंड फॉर्मूला पे जाते हैं. सो यहाँ पे ऊपर कोवेरियंस का सेकंड फॉर्मूला, दैट इज सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार आ गया ये. ओके,
नीचे क्या है, तो नीचे आप लोग को याद रखना है n इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। तो ये सम्स करने से पहले आपको अलग से स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x और अलग से स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y या तो दिया होगा, या तो आप लोग इसमें से फॉर्मूला यूज़ करके, कौन से, जो स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ फाइंड करने के लिए जो है, इन दोनों में से कोई, इन चारों में से कोई भी दो फॉर्मूला हमको यूज़ करने पड़ेंगे। x के लिए ये दो और y के लिए ये दो, मतलब कि वो दो में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, sx एंड sy, और फिर इसको जब n से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है ये वाला। ठीक है, फिर से एक बार, r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू एस वाई इंटू एस एक्स। ठीक है, ये हम लोगों को याद रखने हैं फॉर्मूलाज। अभी ये फॉर्मूला यूज़ कहाँ पे करने हैं वो भी बताइए था। 5 फॉर्मूला है, 5 में से कोई भी फॉर्मूला से आप लोग आंसर करोगे, आपका आंसर राइट ही आएगा, एक ही आएगा, वो अलग अलग आएगा नहीं। बट सिंप्लीफिकेशन के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक में भी देखोगे कि अलग अलग फॉर्मूला यूज़ किए हुए हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप लोग जैसे क्वेश्चन दिया हो उसके अकॉर्डिंगली ही आंसर को वहाँ पे लिखें। जैसे कि यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला 1, वो कब यूज़ करना है, when वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर मोर देन 25। आपको वैल्यू जो दी है ऑब्जर्वेशन की, वो अगर 25 से ज़्यादा की हो ना, तब हम लोग को फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो मोर देन 25 वाले हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हमने सेकंड फॉर्मूला कब यूज़ करना है, तो सेकंड फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब आपके ऑब्जर्वेशन 25 से कम हो। बुक में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है, ये कोई रूल्स नहीं है, बट सिंपल करने के लिए आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए मुझे ये मेथड से अगर करूँगा तो ईजी हो जाएगा। इसके लिए मैंने बस वहाँ पे कंडीशन दी हुई है। ठीक है, वो रूल्स नहीं है, ना ही बुक्स में कहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो 25 मोर देन 25 इट मीन्स फॉर्मूला 1, लेस देन 25 इट मीन्स फॉर्मूला 2। तो थर्ड वाला फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज अ मिक्सचर ऑफ फॉर्मूला 1 एंड फॉर्मूला 2। अभी इसमें आप उसका न्यूमरेटर पार्ट देखो, मतलब कि ऊपर का हिस्सा, तो आपको समझ में आएगा दैट इज टेकन फ्रॉम द फॉर्मूला 1, एंड नीचे का हिस्सा देखोगे तो आपको समझ में आएगा दैट इज टेकन फ्रॉम द फॉर्मूला 2। सो इन दिस वे हमारे 3 फॉर्मूला हो जाते हैं। हमको पूरा याद रहना चाहिए कि जितने भी फॉर्मूलाज है वो सारे यहीं पे डिपेंडेंट है, इसी के ऊपर। ठीक है, अगर आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ जाएगा तो ये बाकी के सारे फॉर्मूला आप अपने आप बना लोगे। ठीक है, और वो याद रखना भी पड़ता है इंडिविजुअली भी। आप लोग डायरेक्टली इसी फॉर्मूला पे नहीं जा सकते, ना इसी फॉर्मूला पे। एस एक्स फाइंड करना है तो उसके लिए भी उसके 2 फॉर्मूला याद रखने ही पड़ते। एस वाई फाइंड करना है तो उसके लिए भी उसके 2 फॉर्मूला याद रखने ही पड़ते। तो वो हर एक फॉर्मूला यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। अभी जैसे मैंने बोला था 5 फॉर्मूलाज है। ये जो फॉर्मूला है, फिर से एक बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन कर लो कि ये तीनों जो फॉर्मूला है वो हम लोग तब यूज़ करेंगे जब आपकी x बार या y बार की वैल्यू जो है वो कोई होल नंबर आए। होल नंबर तब भी हो सकता है, होल नंबर मतलब कि कंप्लीट नंबर, जैसे कि 110, 115, वहाँ पे डेसिमल या पॉइंट नहीं हो x बार या y बार की वैल्यू में, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, अभी तब क्या, जब आपको डेसिमल में आंसर आया, डेसिमल जो नंबर जिसमें आंसर आता है या पॉइंट पे जिसमें आंसर आता है उसको हम लोग फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। तो अगर आपका x बार या y बार फ्रैक्शन नंबर आता है, इन दैट केस आपके फॉर्मूला थोड़े चेंज हो जाएंगे। और ऐसे 2 फॉर्मूलाज है। कौन कौन से 2 फॉर्मूला है देख लेते हैं। तो जो पहला फॉर्मूला है दैट इज r इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब x और y के x बार और y बार की वैल्यू किस में आए, फ्रैक्शन के अंदर। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 फॉर्मूला है, तो ये वाला कब यूज़ करना है और ये वाला कब यूज़ करना है वो कैसे पता चलेगा, है ना। तो उसके लिए भी एक हिंट है। सबसे पहले तो ये वाला जो है वो हम लोग तब यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाला, जब आपके ऑब्जर्वेशन स्मॉल हो। कैसे हो,
स्मॉल नंबर हो। जबकि ये वाला तब यूज़ करेंगे जब आपके ऑब्जर्वेशंस बहुत बड़े बड़े हो एंड वो पर्टिकुलर कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा हो। पैटर्न से मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम्पल 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 सभी के पीछे 330 है, तो यहाँ पे वो कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। 500, 1000, 1500, 2000 ये सारे ऐसे नंबर है जिसको मैं 500 से डिवाइड करके छोटा कर सकता हूँ, क्योंकि बिग नंबर होंगे ना, तो वहाँ पे पैटर्न होगी। तो उसके लिए आपको उसको डिवाइड या किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है। दूसरी एक बात जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे समझा दूँ कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अभी इसको यूज़ कब करना है कि जब भी देखो, नॉर्मल तो हम लोग ये वाले फॉर्मूला से भी आंसर लेके आ ही सकते हैं, पर जब आपके नंबर्स बहुत बड़े हो, बिग हो और वो कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हो, तब हमको कंपलसरी यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। क्वेश्चन में तो यू और वी दिया नहीं होगा, आपको एक्स ही दिया होगा। क्या दिया होगा? एक्स। एक्स को यू बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो एक्स मैंने जैसे बताया कोई बहुत बड़ा नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स में से कोई एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और कोई दूसरा और छोटा करने के लिए किसी दूसरे नंबर से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। बट ये तभी हो सकता है जब ये सभी के सभी जितने भी नंबर्स वहाँ पे दिए हो, जितने भी ऑब्जर्वेशन दिया हो, वहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हम लोग चेंज कर पाएंगे नहीं। किसी कांस्टेंट नंबर से हम लोग को उसको डिवाइड या माइनस करना पड़ेगा, तो इससे जो नंबर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यू। मतलब कि जहाँ जहाँ पे आप देखो, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या हो चुका है, वहाँ पे u हो गया, जहाँ पे y है वहाँ पे क्या हो चुका है, v। तो फॉर्मूला तो सेम ही है, x की जगह पे क्या रखना है आपको, u, और y की जगह पे क्या रखना है, v। ये फॉर्मूला मैं आपको एडवांस में एक दिन इसके लिए बता रहा हूँ ताकि कल तक आपको लर्न हो जाए। परसों से हम लोग सम स्टार्ट करने वाले डायरेक्टली। सो आज हम लोग सिर्फ थियरी पोर्शन देख रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट था आपके पास टाइम रहे फॉर्मूला लर्न करने का, तो जब सम्स करवाए तब आपको वो हर एक फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आता हो, उसका कब कैसे यूज़ करना है वो भी आपको आइडिया आ जाए। ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला पार्ट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। So the value of the correlation coefficient lies in the interval -1 to 1. Most important questions so many times asked in a board exam as a short question answer, as a MCQ. Okay, so the value of the correlation coefficient in the interval -1 to 1, जो आपका correlation coefficient R की वैल्यू है वो हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में ही आती है। The correlation coefficient is free from unit of measurement, whatever may be the units of two variable, does not have any units of measurement. आपके जो यूनिट है, मतलब कि आपको जो ऑब्जर्वेशन दिए होंगे वो हो सकता है किलोमीटर में दिया हो, किलोग्राम में दिया हो, मीटर में दिया हो, किसी भी तरीके करेंसी में दिया हो, रुपीज़ में, डॉलर में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर जो मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो किसी भी यूनिट को फॉलो नहीं करती, क्योंकि वो यूनिट फ्री होता है। आप लोग कभी भी आर की वैल्यू किसी यूनिट में नहीं देखोगे, मतलब आर की जो वैल्यू आएगी पर उसके पीछे ना तो किलोग्राम होगा, ना तो किलोमीटर होगा, ना तो लीटर होगा, वहाँ पे वो यूनिट फ्री है। ठीक है। थर्ड वन इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन वेरिएबल x एंड y इज सेम एज द वन ऑफ बिटवीन y एंड x। मतलब कि आप x और y की वैल्यू फाइंड करो या y और x की वैल्यू फाइंड करो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू सेम ही आएगी। मतलब कि r की वैल्यू वही आएगी, चाहे आप rxy फाइंड करो चाहे फिर आप RYX फाइंड करो, इन दोनों की वैल्यू हमेशा कैसे रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है। देन इफ R ब्रैकेट इन ब्रैकेट -x इंटू वाई, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस में। ठीक है। इसको मैं आपको और ज़्यादा सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें नहीं जाते, बहुत सिंपल तरीके से। आप लोग प्लस और माइनस के रूल्स पता है, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स क्या होते हैं कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है। मतलब कि अगर दोनों साइन इक्वल रहे तो उसका आंसर प्लस में आएगा, और अलग अलग साइन रहेगा तो उसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो वैसे ही अगर आपकी कोई भी एक, जैसे कि इसमें देखो x जो वो माइनस में, y किस में है, प्लस में,
तो उसका कोरिलेशन आर की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। ठीक है, वैसे ही अगर x प्लस मेरा और y माइनस मेरा, एक प्लस और एक माइनस हो रहा है ना, तो उसकी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। बट अगर दोनों ही माइनस हुआ तो उसका आंसर किस में आएगा, प्लस में। आ रहा है समझ में? यहाँ पे देखो r की वैल्यू किस में दी है, प्लस में। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो अगर सेम साइन होगा तो आंसर प्लस में होगा, एंड अगर ऑपोजिट साइन होगा तो आंसर माइनस में होगा। बस इतना सा ही सिंपल है। और इसी के बेस के ऊपर अब तक करीबन 3 to 4 टाइम बोर्ड के अंदर इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और इसमें ही मिस्टेक कर दे, बाकी है सिंपल सा, रूल्स बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, ओके। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट अवर प्रॉपर्टीज, दैट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट डज नॉट चेंज विद द चेंज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन स्केल। अभी यहाँ पे जो मैंने आपको x और y का बताया था वही रूल्स यहाँ पे भी फॉलो होता है कि आपका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो चेंज नहीं होता अगर आप उसकी वैल्यू में से किसी एक कांस्टेंट नंबर को माइनस कर दो या किसी कांस्टेंट नंबर से उसको डिवाइड कर दो, वो चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था, देखो यहाँ पे वही दिया हुआ है दैट x, अगर मुझे x और y दिया हुआ है वेरिएबल, उसकी जगह मुझे कोई दूसरा वेरिएबल फाइंड करना है। जैसे कि मैंने आपको स्मॉल करने के लिए क्या दिया था, u एंड v, जो हमारे फॉर्मूला में थे, जहाँ पे x की जगह पे u रखते थे और y की जगह पे v रखते थे। तो वो u और v कैसे मिल जाता है, हम लोग उसको छोटा करने के लिए, मैंने आपको एक बार फिर से याद करवा दूँ, वो वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना था, जब ऑब्जर्वेशन जो है उसके डिजिट बहुत बड़े हो, ऑब्जर्वेशन बहुत बड़े दिए हो, तो उसको स्मॉल करना पड़ेगा। स्मॉल क्यों करना पड़ेगा, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अगर आपने स्मॉल नहीं किया, आगे जाके हो सकता है कि आपके कैलकुलेशन इतने बड़े हो जाए कि आपका कैलसी इसको सहन नहीं कर पाए, 12 डिजिट्स के कैलसी से बाहर निकल जाए। तो वो सब नहीं हो, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स नहीं हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे स्मॉल करने के लिए क्या किया हम, तो हम लोग दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो कोई एक पर्टिकुलर नंबर उसमें से क्या कर लो, माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद भी अगर बड़ा नंबर है तो उसको किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से क्या कर दो, डिवाइड। पर याद रखो मैं कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जो भी यहाँ पे कर रहे हो किसी एक ऑब्जर्वेशन के साथ, वो आपके हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ आपको करना पड़ेगा। सपोज मान लो ए अगर आपने 50 लिया हुआ है, 50 माइनस कर रहे हो हर एक नंबर में से, हर एक ऑब्जर्वेशन में से। अगर एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो आपको हर एक ऑब्जर्वेशन में से 50 ही माइनस करना पड़ेगा। अगर आप एक ऑब्जर्वेशन को डिवाइड बाय 100 कर रहे हो तो हर एक ऑब्जर्वेशन को भी डिवाइड बाय 100 ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। एंड दूसरा, वैसे अगर v फाइंड करेंगे तो ये y की वैल्यू में से माइनस और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो इस हिसाब से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं कि कोई एक कांस्टेंट नंबर को सबट्रैक्ट या डिवाइड करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होगा उसकी वैल्यू वही की वही आएगी जो आपने पहले फाइंड की थी। ठीक है, मतलब कि आप डायरेक्टली एक्स वाई मेथड से करो या तो फिर यूवी वाले मेथड से करो, उसके वैल्यू में कोई चेंज आता नहीं है। ठीक है, सो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एज ए शॉर्ट नोट्स, 5 marks, 5 points are there. It is normally asked for a 3 marks. Okay, interpretation of the value of correlation coefficient. So अपने वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है, अभी उसको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा ना, ये वैल्यू बता क्या रही है वो भी तो हमको जानना पड़ेगा। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1, के r की वैल्यू, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आपकी 1 है तो उसका मतलब क्या होता है। सो इफ r इज इक्वल टू 1 देन वी कैन से दैट there is a perfect positive correlation between the variable। आपके जो वेरिएबल है उसके बीच में कैसा रिलेशन होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी ग्राफ के अंदर देखा कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। सो व्हेन इंक्रीज or decrease in the value of one variable result in increase or decrease in the value of other variable in constant proportion then the value of r is equal to 1। अगर वेरिएबल x में इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल y में भी इंक्रीज होगा। वेरिएबल x अगर 10 से इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल y भी 10 से इंक्रीज होगा। तो दोनों एक तो इंक्रीज हो रहे हैं और सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या, वहाँ पे कौन सा रिलेशन क्रिएट होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन।
और तब उसकी जो कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 1. For such variable we get all points on the same straight line in increasing direction in the scatter diagram, जो हमने ऑलरेडी देख लिया था. ठीक है कि हमारा जो स्ट्रेट लाइन बन रहा था वो कैसे बन रहा था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, मतलब कि अपवर्ड जा रहा था वो. ठीक है. इन द सेम वे अगर हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ आर इज इक्वल टू -1 करेंगे, -1 का अगर आर की वैल्यू आई तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकल सकता है. So if r is equal to -1, then we can say that there is a perfect negative correlation between two variable. +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव, -1 आया तो परफेक्ट नेगेटिव. ठीक है. When increase or decrease in the value of one variable results in decrease or increase in the value of the other variable in constant proportion, then the value of r is equal to -1. x and y दो वेरिएबल है. x अगर 10 पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है तो y अगर 10 पॉइंट से डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. तो ये कैसा रिलेशन दिखा रहा है कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है. प्रोपोर्शन वही है, ये भी 10 इंक्रीज हो रहा है, ये 10 ही बट डिक्रीज हो रहा है. इन दैट केस आपका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा वो दिखाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, एंड उसको हम लोग रिविजन करेंगे. r की जो वैल्यू आएगी तब कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वो आएगी -1. For such variable, we get all points on the same straight line in the decreasing direction in the scatter diagram. अगर आपको सेकंड डायग्राम याद हो कि जहाँ पे क्या होता था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो डाउनवर्ड जा रहा था. ठीक है. सो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड मतलब कि वहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि वहाँ पे ऑपोजिट रिलेशन होता है. एक अगर एक की वैल्यू इंक्रीज होती है तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. ठीक है. Now move on to the next, that is interpretation of r is equal to 0. जब 0 होगा तब क्या होगा. So if r is equal to 0, then we can say that there is a no linear correlation between two variables. जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, है ना. लीनियर कोरिलेशन हो तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव समझ में आ जाता है, बट कोई रिलेशन है ही नहीं वहाँ पे. इट मीन्स कि वहाँ पे जो r की वैल्यू है वो क्या आएगी, 0. जो हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन ग्राफ के अंदर 5th नंबर के अंदर कि जहाँ पे कोई लीनियर पैटर्न ही नहीं बन रहा था, ना अप ट्रेंड ना डाउन ट्रेंड, कोई पैटर्न नहीं बन रहा था. इन दैट केस हम लोग वहाँ पे बोल सकते हैं कि r की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, 0. इन अदर वर्ड्स p इज इक्वल टू 0 शोज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन एंड हैंस टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी लीनियरली अनकोरिलेटेड. There is no linear correlation neither on an uptrend or nor on a downtrend. So वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू ऑफ कोरिलेशन है, r की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 0. For such variable we get randomly scattered points not on around any line in the scatter diagram. तो स्कैटर डायग्राम में हमने देखा था कि सारे पॉइंट्स एक सर्कल के आजू बाजू होते, किसी लाइन को फॉलो नहीं करते. ठीक है ना, कोई ट्रेंड को फॉलो नहीं करते. सो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि स्कैटर डायग्राम के अंदर आपके जो पॉइंट्स आएंगे वो स्कैटर अलग तरीके से दिखाएंगे, बट कोई ट्रेंड फॉलो कर रहे होंगे नहीं. नॉट दैट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ r गिव्स ओनली द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर कोरिलेशन. सो व्हेन r इज इक्वल टू 0 वी कैन ओनली से दैट लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज एब्सेंस, बट देयर मे बी नॉन लीनियर कोरिलेशन. ठीक है. जब वैल्यू आती है 0 तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें कोई भी कोरिलेशन है नहीं, मतलब कि वो कैसा हो जाता है, नॉन लीनियर कोरिलेशन. ठीक है. फ्रॉम द scatterness of the points in the scatter diagram we can get some ideas about the type of non linear correlation. तो यहाँ पे आपको टाइप समझ में आता है. ठीक है कि वो किस हिसाब, मतलब कि हमने 3 देखे कि r की वैल्यू 0 हो तब क्या होता है, r की वैल्यू 1 हो तब क्या होता है, r की वैल्यू -1 हो तब क्या होता है, बट क्या उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, नहीं. ठीक है. अभी हम लोग जा रहे हैं पार्शियल कोरिलेशन में. ठीक है. अभी पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, तो समझो कि आपने जो अभी आगे देखा उसमें क्या था, -1 0 एंड 1. इसके बीच में भी बहुत कुछ होता है, -1 और 0 के बीच में भी बहुत कुछ होता है, 0 और 1 के बीच में भी बहुत कुछ होता है. तो अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, ना 0 आया ना 1 आया, बस उसके बीच में कुछ आया, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन. वैसे ही -1 और 0 के बीच में भी आया तब भी क्या होगा, वो पार्शियल कोरिलेशन. एग्जैक्ट -1 नहीं आया, एग्जैक्ट 0 भी नहीं आया, एग्जैक्ट 1 भी नहीं आया, इन तीनों के बीच में कहीं पे कुछ भी आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन. सो इट हैज़ द वैल्यू ऑफ r इज बिटवीन 0 एंड 1 एंड और बिटवीन -1 एंड 0. तो हमने बताया था कि अगर हमारी जो वैल्यू जो है
वो अगर 0 और 1 या तो -1 एंड 0 के बीच में आई तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल कोरिलेशन। इफ r इज लेस देन 1 then we can say that there is a partial imperfect correlation between two variable। अगर r की वैल्यू 1 से कम हुई तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे पार्शियल या imperfect correlation है between two variable, ठीक है। when the value of r is nearer to 1 we can say that the relationship between two variables is close to perfect linear correlation and there is a high degree of relationship। In such case, we can obtain a reliable estimate of changes in one variable corresponding to changes in value of other variable। ये सारी चीज़ें मैं क्लास में एक डायग्राम दिखाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा अच्छे से आपको विद डायग्राम समझ में आएगी। सेकंड पॉइंट इज व्हेन द वैल्यू ऑफ आर इज नियर टू 0 वी कैन से दैट स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशन इज वेरी लेस and there is a almost lack of linear correlation between two variable। In such a case we cannot obtain reliable estimate of the changes in the value of one variable corresponding to changes in the value of other variable। ये वो ग्राफ है जिसके बात कर रहा था, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ आर। यहाँ पे हम लोग को एक लाइन के थ्रू मैंने यहाँ पे दिखाया है, जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिखी है। अभी यहाँ पे देखो, पहले तो हमने ये समझ लिया कि ये -1 क्या है, 0 क्या है। तो -1 दिखाता है आपको परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। -1 क्या दिखाता है आपको, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। 0 क्या दिखाता है आपको, लेक ऑफ लीनियर कोरिलेशन, ठीक है, वो अभी हमने देखा। और 1 क्या दिखा रहा है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। पर जो हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्ट या परफेक्ट की बात ही नहीं, हम लोग इन बिटवीन मतलब कि पार्शियल की बात कर रहे हैं। पार्शियल कोरिलेशन कहाँ पे आएगा, तो -1 यहाँ पे है, तो ये जो पूरा एरिया कवर हो रहा है ये क्या होगा, पार्शियल कोरिलेशन। ये जो पूरा एरिया है वो क्या होगा, पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है। अभी पार्शियल कोरिलेशन की वैल्यू जो उसमें हमने एक चीज़ यहाँ पे देखी, अभी यहाँ पे पढ़ो, व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज नियर टू 1 इट इज़ आइदर -1 और +1, ठीक है। वो जैसे 1 के नज़दीक होगा तो हम लोग बोलेंगे वहाँ पे हाई डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, वहाँ पे जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा, हाई डिग्री, उसकी डिग्री जो होगी हाई होगी। सो हम लोग वहाँ से भी जो भी एस्टिमेट करें वो एस्टिमेट रिलायबल होगा। जो भी एस्टिमेट हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं उसको वो अमाउंट को लेके वो कैसा होगा, रिलायबल, ठीक है। जबकि हम लोग दूसरे पार्ट में देखें कि अगर उसकी वैल्यू किसके नज़दीक हो, 0 दो तरीके हो सकता है, -1 से इस तरफ आओ तो ये 0, यहाँ से यहाँ पे आओ तो ये 0। तो यहाँ पे जो रिलायबिलिटी होगी वो लो होगी। क्यों लो होगी, क्योंकि यहाँ पे लो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देखा जाता है। जैसे इसकी वैल्यू 0 की तरफ होगी तो वहाँ पे क्या होगा, लो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अगर उसकी वैल्यू -1 या 1 के नज़दीक होगी तो हम लोग वहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि उसकी वैल्यू जो है -1 या 1 के नज़दीक होगी, तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि उसमें हाई डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है। अगर वो 0 के करीब होगी तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे लो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है। अगर हाई डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होगा देन इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू obtain a reliable estimate of changes, and if it is nearer to 0 and you have a low degree of relationship, in that case we can say that we cannot obtain a reliable estimate of the changes. So that's it for today. I hope you enjoyed these sessions. Stay safe at your home. Thank you very much.